Welcome to this lecture. Today we will discuss the alternating average value or mean value of alternating current. And after that we will discuss the average value or mean value of alternating EMF. Before discussing this mean value or average value of alternating current, yesterday I discussed with you about the waveform of alternating current. This is the waveform of alternating current. This is the peak value of alternating current, and this peak value of alternating current, this was called as current amplitude. Now, for full cycle, the time taken by the AC is T. Therefore, for half cycle, the time taken by the AC is T by 2. Between time 0 to T by 2, we have a positive half cycle of AC, and between time T by 2 to T, we have the negative half cycle of AC, downwards. Now, for example, we have a circuit here. Let us connect this circuit to an AC source. ठीक है ना? Alternating source. Now, suppose this is the circuit. It is connected to AC source here, alternating source. Now, the average value or mean value of alternating current over half cycle of AC, over this half cycle of AC, either from time 0 to T by 2 or from time T by 2 to T. The average value or mean value of alternating current over its half cycle, means over time T by 2, is defined as ratio of the total charge flowing through the circuit, ratio of total charge flowing through the circuit to the total time taken to complete this half cycle. This average value or mean value of alternating current over half cycle of AC is defined as total amount of charge flowing through the ratio of total amount of charge flowing through the circuit to the total time taken to complete the half cycle of AC. What is the total time taken to complete the half cycle of AC? T by 2. This average value or mean value of alternating current, we denote this by I average. Therefore, this I average is equal to ratio of total amount of charge flowing through the circuit, total amount of charge flowing through the circuit, let us call that charge as Q, to the total time taken to complete the half cycle, because we are defining it over the half cycle, to the total time to complete the half cycle. भाई जैसे आपको पता है करंट होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम, यहां पर जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, इसको हम डिफाइन करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टू द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द हाफ साइकिल. ठीक है ना? एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ टोटल चार्ज जो सर्किट में फ्लो हो जाएगी तो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग गया फॉर कंप्लीटिंग द हाफ साइकिल ऑफ AC. What is the total time taken to complete the half cycle of AC? T by 2. Therefore, this I average is equal to Q divided by T by 2. 2 जो है वो ऊपर जाएगा, तो this implies I average जो होगा वो होगा 2Q by T. 2Q by T. I average is equal to 2Q by T. Now let me derive the expression for it. आपको यहां निकला कि जो I average है, I average आपको निकला that is 2Q divided by T. Let us call this equation number first. We will derive the expression for this average value of alternating current, or we will derive the relation between average value of alternating current and peak value of alternating current. What is the peak value of alternating current? I naught. How will we derive the expression? Let you see. Suppose I is the instantaneous current flowing through the circuit at any instant of time. Suppose let I is equal to instantaneous current flowing through the circuit
flowing through the circuit at any time. I जो है वो मैंने लिया instantaneous current flowing through the circuit at any instant of time. Therefore आपने कल पढ़ा जो I instantaneous होता है, instantaneous value of alternating current जो होता है वो होता है I naught sin omega t. कल आपने पढ़ा इसको, I होता है बराबर I naught sin omega t. What is this I? This is the current flowing through the circuit at any instant of time. So this current is called as instantaneous current. We have to calculate this Q. When we calculate the Q, we will put the value of Q, we will get I average. But आपको पता है जो instantaneous current I होता है वो होता है dQ divided by dt. But instantaneous current is equal to dQ by dt. ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज. अब इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे आई के बदले क्या लिखेंगे, dQ by dt. Therefore फर्स्ट बिकम्स क्या बनेगा मेरा फर्स्ट, शाबाश, dQ by dt इज इक्वल टू I naught sin omega t. dQ by dt इज इक्वल टू I naught sin omega t. dt को हम t के साइड में लेंगे तो ये बनेगा dQ is equal to I naught sin omega t dt. What is this Q? This is the total charge flowing through the circuit during the half cycle of AC. ठीक है ना? So in order to calculate this Q from this equation, हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है. जब हम dQ को इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या निकलेगा Q. मगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द फ्रॉम टाइम 0 to t by 2 फॉर द हाफ साइकिल ऑफ AC. ठीक है ना? Therefore total amount of charge flowing through the circuit, total amount of charge flowing through the circuit during the half cycle of AC, during the half cycle of AC, suppose positive half cycle, during the positive half cycle of AC is obtained by integrating this equation between limits 0 to t by 2. देखो बच्चों, ये dQ जो है मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dQ इज Q, तो मुझे क्यों निकलेगा. लेकिन Q कौन सी चार्ज है, Q कौन सी चार्ज है, ये वो चार्ज है जो इस सर्किट में फ्लो हो गई फॉर हाफ साइकिल ऑफ AC. वही मैंने लिखा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the circuit during the half cycle of AC, that is positive half cycle. positive half cycle में टाइम क्या है, 0 to t by 2 is obtained. जब हम इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन सेकंड नाम रखेंगे, जब हम इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स 0 to t by 2. नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं बिटवीन लिमिट्स t by 2 to t. तो करो, therefore integrating this equation, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dQ is equal to integration of 0 to t by 2 I naught sin omega t dt. बच्चों यहां रखो नजर, ये है इंटीग्रेशन ऑफ dQ. इस साइड में लिमिट नहीं देना है, हमें लिमिट देना है उस साइड में जिस साइड में t है, टाइम है. तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dQ is equal to integration of 0 to t by 2 शाबाश I naught sin omega t dt. क्योंकि मुझे वो चार्ज निकालनी है जो चार्ज सर्किट में फ्लो होती है फॉर हाफ साइकिल. ठीक है ना, फॉर टाइम t by 2. ये I naught जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dQ is equal to I naught इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 to t by 2 sin omega t dt. sin omega t dt, sin omega t dt. अब हम आगे जाएंगे, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन, जरा देखो बच्चों. इंटीग्रेशन ऑफ dQ जो होगा वो होता है Q is equal to I naught
इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां थीटा के बदले है ओमेगा टी, यह है माइनस कॉस ओमेगा टी। देखो यहां ये निकला आपको माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो इस साइन ओमेगा के टी को मल्टीप्लाई है वो क्या है, ओमेगा। इंटीग्रेशन में वो इसको डिवाइड होता है, इसको कहते हैं इंटरनल इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू t बाय 2। बच्चों यहां देखो साइन ओमेगा टी की जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। उसके बाद जो t को मल्टीप्लाई होता है वो इसको डिवाइड होता है, उसको कहते हैं इंटरनल इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। इधर t को क्या मल्टीप्लाई है, ओमेगा, इधर t को क्या मल्टीप्लाई है, ओमेगा। तो जब हमने इंटीग्रेशन की ये ओमेगा जो है ये इसको डिवाइड हो जाएगा, माइनस को भी बाहर करेंगे, ओमेगा को भी बाहर करेंगे। तो आपको बच्चों क्या निकला, आपको निकला Q इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, शाबाश, cos ओमेगा टी बिटवीन लिमिट्स 0 टू t बाई 2। आपको निकला Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, ओमेगा को बाहर लाया, माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, शाबाश, cos ओमेगा टी बिटवीन लिमिट्स 0 टू t बाई 2। बट आपको पता है 11th क्लास में जो ओमेगा होता है यह होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है। तो लगाओ इसमें ओमेगा का वैल्यू, देयरफॉर क्यों किसके बराबर निकलेगा, क्यों निकलेगा बराबर माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई, शाबाश, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी किसके बदले लिखा, 2 पाई बाई टी, ओमेगा के बदले, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा के बदले 2 पाई बाई कैपिटल टी इनटू है स्मॉल टी बिटवीन लिमिट्स 0 टू t बाई 2। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी इनटू है t बिटवीन लिमिट्स 0 टू t बाई 2। आगे जाएंगे बच्चों हम, देखिए ये t जो है ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, माइनस आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है ना। cos ऑफ, शाबाश बोलते ही नहीं हो, cos ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी बिटवीन लिमिट्स 0 टू t बाई 2। अब हम लिमिट देंगे, लिमिट यानी ये स्मॉल t का वैल्यू है, पहले क्या वैल्यू देंगे, t बाई 2 किसके बदले, स्मॉल t के बदले, उसके बदले क्या देंगे, 0 दे दो लिमिट। तो ये बनेगा Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 पाई cos ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी, पहले देंगे इसको t को वैल्यू t बाई 2 इंटू t बाई 2 माइनस फिर 0 वैल्यू cos ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी के बदले फिर 0। देखो पहले इस स्मॉल टी के बदले क्या लिखना है, इधर देखो पहले स्मॉल टी के बदले क्या लिखना है, t बाई 2, फिर क्या लिखना है, 0। यहां देखो t एंड t कैंसल्स, 2 एंड 2 कैंसल्स, ये निकलेगा Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट t डिवाइडेड बाई 2 पाई cos ऑफ पाई, क्योंकि t और t कट गया, 2 और 2 कट गया, ये आएगा cos पाई माइनस cos 0, माइनस cos 0। क्यों निकला बराबर आपको माइनस आई नॉट टी 2 पाई cos पाई माइनस cos 0। बच्चों ये याद रखना, cos ऑफ ऑड पाई, cos ऑफ ऑड पाई होता है -1, ऑड पाई क्या होगा, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, डैश डैश डैश। जब भी cos ऑफ ऑड पाई होगा उसका वैल्यू क्या होता है, -1। अगर cos ऑफ इवन पाई होगा यानी cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, उसका वैल्यू होता है 1। cos ऑफ ऑड पाई यानी cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, वो वैल्यू किसके बराबर होता है, -1। अगर हम cos ऑफ इवन पाई देखेंगे 2 पाई, 6 पाई, 4 पाई, वो होता है 1। यहां पर ऑड पाई है, ऑड पाई है, तो ये बनेगा Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, cos ऑफ पाई हो गया -1,
cos 0 भी 1 हो गया, लेकिन यहां अपना माइनस है तो -1। देखो cos पाई जो है वो है -1, cos 0 जो है 1, वहां अपना माइनस है, माइनस माइनस हो गया, ये हो गया -2, -1 कितना हो गया -2। तो आपको क्यों निकला बराबर माइनस टाइम्स आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू -2। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो आपको क्यों निकला बराबर, किसके बराबर निकला शाबाश, आपको क्यों निकला बराबर आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। वो निकला ना क्यों का वैल्यू, 2 और 2 कैंसिल हो गया ना, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपको निकला क्यों इज इक्वल टू आई नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई। ये क्या है, ये वो चार्ज है जो फ्लो हो गई इस सर्किट में ड्यूरिंग हाफ द टाइम पीरियड ऑफ एसी, ड्यूरिंग हाफ साइकिल ऑफ एसी। इस क्यू का वैल्यू उठाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन में देंगे, वी गेट द वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन फर्स्ट। तो आपको क्या बनेगा, आपको बनेगा आई एवरेज इज इक्वल टू, ये है 2/t अपना इंटू क्यू का वैल्यू जो है वो है आई नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई, आई नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई। टी और टी कैंसल, तो आपका आई एवरेज जो है यानी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट वो निकला आपको 2/पाई इंटू टी, 2/पाई इंटू टी, 2/पाई इंटू टी नहीं इंटू आई नॉट, सॉरी 2/पाई इंटू आई नॉट, 2/पाई इंटू आई नॉट, ठीक है ना। पाई का वैल्यू देंगे, ये बनेगा आई एवरेज इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू आई नॉट। ये निकलेगा आपको आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू आई नॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहां देखो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये इक्वेशन क्या दिखाती है हमें, ये दिखाती है हमें जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है वो होता है 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये एवरेज वैल्यू निकाला मैंने, ये एवरेज वैल्यू मैंने निकाला खाली हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल मींस फॉर टाइम t/2। मैं दिखाऊंगा आपको जो ये एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल यानी फॉर टाइम किस टाइम, फॉर टाइम 0 to t, फॉर टाइम 0 to t, इस फुल साइकिल के लिए जो ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा, मैं दिखाऊंगा आपको ये 0 होगा। इसीलिए हम इसको किस साइकिल के फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम इसको डिफाइन भी करते हैं और कैलकुलेट भी करते हैं हाफ साइकिल के लिए। लेट मी शो यू दैट फॉर फुल साइकिल दिस इज 0। अभी आपने देखा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, दैट मींस फॉर टाइम 0 to t/2, वो किसके बराबर निकला 0.637 इंटू आई नॉट। मैं ऐसे लिखूंगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, that is for time 0 to t/2, average value of AC for its positive half cycle है ना, that is positive half cycle का टाइम क्या होता है 0 to t/2, वो किसके बराबर निकला मुझे 0.637 इंटू आई नॉट। मैं ऐसे लिखूंगा is given by I average, यहां पर मैं प्लस लिखूंगा I average प्लस, क्योंकि प्लस दिखाता है किस साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो ये निकला मुझे 0.637 इंटू आई नॉट। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर पॉजिटिव हाफ, फॉर इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट मींस फॉर टाइम 0 to t/2, अभी निकला मुझे आई एवरेज। अब मैंने प्लस डिनोट क्यों किया, मैंने बोला ये किस साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए।
नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो आई नॉट है वो माइनस आई नॉट है, जो आई नॉट है वो प्लस आई नॉट नहीं है, वो क्या है माइनस, पीक वैल्यू है माइनस आई नॉट, ठीक है ना। इसी तरह मैं लिखूंगा देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ AC alternating current for negative half cycle, that is for time t by 2 to t। नेगेटिव हाफ साइकिल जो है उसके लिए जो टाइम होता है वो होता है t by 2 to t, ठीक है ना, ये है ना, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, उसके लिए क्या टाइम है t by 2 to t। उसके लिए जो एवरेज वैल्यू निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, आई एवरेज यहां पर मैं माइनस लिखूंगा इज इक्वल टू माइनस 0.637 इंटू आई नॉट। जरा क्यों माइनस आएगा, वहां माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन भी अगर आप करेंगे वहां ये माइनस आएगा, ठीक है। तो अब ओवर फुल साइकिल, जरा फुल साइकिल का टाइम क्या है 0 to t by 2 to t, यानी फुल साइकिल का टाइम जो है वो है 0 to t, यानी फुल साइकिल का जो एवरेज वैल्यू होगा वो हम ऐड करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना एवरेज वैल्यू निकला, नेगेटिव हाफ साइकिल में कितना एवरेज वैल्यू निकला, उनको जब हम ऐड करेंगे हम देखेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर मीन वैल्यू ऑफ या एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर फुल साइकिल के लिए जो टाइम है वो है 0 to t, उसको हम डिनोट करेंगे आई एवरेज से। वो हो गया आई एवरेज प्लस, है ना, वो होगा आई एवरेज प्लस, यानी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, प्लस आई एवरेज माइनस, यानी मीन वैल्यू और अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। वैल्यू लगाओ, ये आई एवरेज निकलेगा आपको 0.637 इंटू आई नॉट माइनस 0.637 इंटू आई नॉट। क्यों, आई एवरेज पॉजिटिव जो है वो है 0.637 इंटू आई नॉट, आई एवरेज नेगेटिव जो है वो है माइनस 0.637 इंटू आई नॉट। दिस एंड दिस कैंसल, तो आपको आई एवरेज निकला 0। इसका मतलब है जो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर इट्स फुल साइकिल, यानी फॉर टाइम 0 to t by 2, वो किसके बराबर है 0 के बराबर। इसीलिए जब हमने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखना होगा या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखना होगा, हम इसको डिफाइन करते हैं ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, या इसको कहेंगे हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। हमने अभी डिफाइन किया, हमने अभी डिस्कस किया एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वो हमने डिफाइन किया टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टू द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द हाफ साइकिल ऑफ AC, ठीक है ना। अब हम यहां डिफाइन करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। देखो पहले आप कैसे हम डिफाइन करेंगे, आप नजर रखो। सपोज बेटा यहां पर हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो है R। सपोज इस सर्किट को मैंने पहले कनेक्ट किया एक AC सोर्स को, दिस इज एन AC सोर्स, ये AC सोर्स है, ऐसे AC सोर्स, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये क्या है इसका नेगेटिव हाफ साइकिल। जो इसका हाफ टाइम पीरियड होता है वो होता है t by 2, क्योंकि टाइम पीरियड इसका t है, हाफ द टाइम पीरियड ऑफ AC कितना है t by 2। सपोज जो मेरा ये सर्किट है, इस सर्किट को मैंने अप्लाई किया अल्टरनेटिंग EMF। अल्टरनेटिंग EMF होता है वो EMF आपने कल पढ़ा जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होगा और जिसका डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होगा, which reverses its direction periodically, कल बताया। सपोज जो ये सर्किट है, इस सर्किट को मैं अप्लाई करूंगा अल्टरनेटिंग EMF, लेकिन फॉर टाइम t by 2। सपोज जो मैंने सर्किट लिया, इस सर्किट को मैं अप्लाई करूंगा अल्टरनेटिंग EMF फॉर टाइम t by 2। व्हाट इज टाइम t by 2? इट इज हाफ द टाइम पीरियड ऑफ AC। सपोज जब मैंने इसको अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ AC, सपोज इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हुई। क्या हुई? 10 एम्पियर करंट। मैंने क्या किया? मैंने इस सर्किट में अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया
फॉर ए टाइम इक्वल टू हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। सपोज अब मैं ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ रिप्लेस करूंगा। सपोज अब मैं इस सर्किट पे अप्लाई करूंगा स्टेडी ईएमएफ। स्टेडी मींस कांस्टेंट ईएमएफ या डीसी ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहा, चेंज होता जा रहा है। अब मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ रिप्लेस किया, मैंने इसको अप्लाई किया स्टेडी ईएमएफ, कांस्टेंट ईएमएफ। सपोज जो है कांस्टेंट ईएमएफ है, ये भी मैं इस सर्किट को अप्लाई करूंगा फॉर सेम टाइम पीरियड। व्हाट इज दैट टाइम पीरियड? T/2। अगर इस वक्त भी इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो गई, तब इस स्टेडी ईएमएफ को हम कहेंगे एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मैंने सर्किट को पहले लगाया अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर टाइम T/2, हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उससे क्या हुआ, सर्किट में सपोज 10 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। उसके बाद मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ रिप्लेस किया, किससे? स्टेडी ईएमएफ से। अगर ये स्टेडी ईएमएफ भी मैं इसको अप्लाई करूंगा फॉर द सेम टाइम, व्हाट इज द टाइम? टाइम पीरियड ऑफ हाफ द टाइम पीरियड ऑफ एसी। अगर स्टेडी ईएमएफ सेम टाइम अप्लाई करने से इस सर्किट में सेम करंट फ्लो हो गया जितना अल्टरनेटिंग ईएमएफ से अप्लाई हुआ फ्लो हुआ था, तब इस स्टेडी ईएमएफ को हम कहते हैं क्या कहते हैं? एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जरा आप हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज डिफाइंड एज दैट स्टेडी ईएमएफ, दैट कांस्टेंट ईएमएफ, दैट डीसी ईएमएफ which sends the same amount of current through the circuit in the same time, ठीक है ना? in the same time equal to half the time period of AC as is sent by the alternating EMF for the in the same circuit in the same time। ऐसे करेंगे डिफाइन। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF is defined as that steady EMF which sends the same current through the circuit for the same time as is sent by the alternating EMF through the same circuit in the same time equal to the half the time period of alternating current। मैंने आपको बताया जो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो एक स्टेडी ईएमएफ है। जो स्टेडी ईएमएफ एक सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा रहा है, ठीक है ना, फॉर द सेम टाइम। वो टाइम क्या है? हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एज इज सेंट बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर द सेम इन द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम। तब इस स्टेडी ईएमएफ को हम कहेंगे क्या? एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एक बार फिर, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज डिफाइंड एज दैट स्टेडी ईएमएफ, दैट कांस्टेंट ईएमएफ व्हिच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द सर्किट फॉर द सेम टाइम इक्वल टू व्हाट? हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एज इज सेंट बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखो बच्चों, सपोज हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट को मैंने अप्लाई किया अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो किसके बराबर है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यह है अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो मैंने अप्लाई किया एक सर्किट को जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R। E is equal to E naught sin omega t be the alternating EMF applied to a circuit having resistance R। बच्चों देखो, मैंने एक सर्किट लिया जिसका रेजिस्टेंस R है। इस सर्किट को मैंने कितना अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया? E is equal to E naught sin omega t। What is E naught? E naught is the peak value of alternating EMF। ठीक है बच्चा? What is E naught? Peak value or peak value of alternating EMF।
let I is equal to instantaneous current in the circuit. I is equal to instantaneous current in the circuit means current at any instant of time. बच्चों यहां देखो, I जो है वो लिया मैंने, चूंकि मैंने इसको EMF अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया. सपोज इस अल्टरनेटिंग EMF इस अप्लाई करने से इस सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है? I जो है वो सर्किट में करंट है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट. Therefore फ्रॉम ohms द आपका E जो होगा वो होगा I इंटू R. E इज इक्वल टू आई आर, है ना. ohms द कहता है E इज इक्वल टू आई आर. I निकालो, I हो गया फिर E डिवाइडेड बाय R. I हो गया E डिवाइडेड बाय R. E का वैल्यू लगा फर्स्ट से, I हो गया E नॉट साइन ओमेगा T डिवाइडेड बाय R. I हो गया E नॉट साइन ओमेगा T डिवाइडेड बाय R. व्हाट इज दिस I? इंस्टेंटेनियस करंट. बट आपको पता है I जो होता है वो होता है dq बाय dt. ठीक है, तो यहां अप्लाई करो, ये बनेगा dq बाय dt इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय R साइन ओमेगा T. I जो है दिस इज dq बाय dt, फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज. तो ये बनेगा दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बनेगी? dq बाय dt इज इक्वल टू E बाय R साइन ओमेगा T. dt को यहां ले लो, dt को यहां ले लो, ये क्या बनेगा? शाबाश, ये बनेगा dq इज इक्वल टू E नॉट बाय R साइन ओमेगा T dt. ये बनेगा dq इज इक्वल टू E नॉट बाय R साइन ओमेगा T dt. हम अब देखेंगे इस सर्किट में कितनी चार्ज फ्लो हो गई फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ एसी. हाफ द टाइम पीरियड ऑफ एसी हो गया वो टाइम, जो हाफ द टाइम पीरियड ऑफ एसी कौन सा टाइम है? T/2. हम पहले देखेंगे 0 टू T/2 कितना इस पे चार्ज फ्लो हो गया इस सर्किट में. वो कैसे हम निकाल सकते हैं? जब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट 0 टू T/2. भाई ये हाफ साइकिल है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसके लिए टाइम क्या है? 0 टू T/2. टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस सर्किट में फ्लो होगी फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ एसी और वी कैन से फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो कैसे निकलेगी? जब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन लिमिट्स 0 टू T/2. टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो मुझे जरूरत है जो इस सर्किट में फ्लो होगी फॉर हाफ द पीरियड ऑफ एसी, वो हम कैसे निकालेंगे? जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स 0 टू T/2. देयरफॉर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T/2 E नॉट बाय R साइन ओमेगा T dt. E नॉट बाय R साइन ओमेगा T dt. E नॉट बाय R जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आएगा. ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू E नॉट बाय R इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू T/2 साइन ओमेगा T dt. वेरी गुड. इंटीग्रेशन ऑफ dq जो है वो है q. यहां देखो, ये है E नॉट बाय R इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा T, अभी सिखाया आपको, वो है माइनस टाइम्स कॉस ओमेगा T डिवाइडेड बाय ओमेगा. लिमिट देंगे 0 टू T/2. साइन ओमेगा T की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस ओमेगा T डिवाइडेड बाय ओमेगा. माइनस भी बाहर आएगा, ओमेगा की बाहर आएगा. ठीक है बच्चों, तो आपको निकलेगा Q इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E नॉट डिवाइडेड बाय R ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा T. तो लिमिट्स है 0 टू T/2. ठीक है बच्चा, माइनस निकाला मैंने. ओमेगा का वैल्यू आपको पता है वो है 2 पाई बाई कैपिटल T, है ना. तो वो वैल्यू देंगे, ये होगा Q इज इक्वल टू माइनस E नॉट R इंटू 2 पाई बाई T इंटू शाबाश कॉस ऑफ ओमेगा के बदले लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t बिटवीन लिमिट्स 0 टू T/2. आगे जाएंगे हम
ये बनेगा Q इज इक्वल टू, देखो बेटा T जो है T ये ऊपर आएगा, ठीक है, ये बनेगा माइनस ई टी ई नॉट, सॉरी माइनस ई नॉट टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, आर इंटू 2 पाई होगा ना, 2 पाई आर। अब हम लिमिट देंगे, पहले स्मॉल टी के बदले लिखेंगे टी बाई 2, फिर क्या लिखेंगे 0 कॉस ऑफ, शाबाश, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी बाई 2, अपर लिमिट दिया। उसके बाद लोअर लिमिट देंगे बच्चों, माइनस टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 0। यहां पर ये टी और ये टी कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, ये बना Q इज इक्वल टू माइनस ई टी माइनस ई नॉट टी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, cos of pi minus cos of 0, cos of pi is minus 1, cos of 0 is 1, तो ये बनेगा Q is equal to minus E naught t divided by 2 pi r, ठीक है ना, into minus 1, तो ये बनेगा Q is equal to E naught t divided by 2 pi r into माइनस है यहां पर into minus 2, माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो आपका जो Q निकलेगा Q, तो आपका Q किसके बराबर निकलेगा बच्चों, शाबाश मुझे बताओ, Q निकला आपको, शाबाश, E नॉट T डिवाइडेड बाय पाई R, सही है ना, E नॉट T डिवाइडेड बाय पाई R। व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल चार्ज जो इस सर्किट में फ्लो हो गई during a time period equal to half the time period of AC, during a time equal to half the time period of AC, यानी for time 0 to t by 2, ठीक है ना, इतनी चार्ज फ्लो होगी। हम लिखेंगे let E average is equal to average value of alternating EMF, जो हमें निकालना है, average value of alternating EMF, E average जो लिया मैंने, ये लिया मैंने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, आई एवरेज इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ई एवरेज जो है ये है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, आई एवरेज जो है ये है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगेन बाय ओम्स लॉ, E average is equal to I average into R, E average is equal to I average into R, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है E is equal to I R, तो E average होगा I average into R। आपने पढ़ा है, बट I average जो होता है, I average का आपने एक्सप्रेशन में निकाला था, वो है 2Q by T, ऊपर वाले क्वेश्चन में I एवरेज किसके बराबर है, 2, बेसिकली ये है Q डिवाइडेड बाय T बाय 2, 2 तो ऊपर लिया तो ये है 2Q बाय T, तो वैल्यू उधर दे दो, तो आपको E एवरेज निकलेगा 2Q बाय T इंटू R, ठीक है, Q का वैल्यू दे दो, जो Q का वैल्यू आपने निकाला ऊपर, पुट वैल्यू ऑफ Q, इसमें Q का वैल्यू दे दो, पुट वैल्यू ऑफ Q का वैल्यू दे दो, तो आपको क्या निकलेगा, आपको निकलेगा E एवरेज इज इक्वल टू 2 बाई टी इंटू Q का वैल्यू, Q का वैल्यू है E नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई R इंटू है R। भाई इधर देखो 2 बाई टी, Q का वैल्यू क्या है, E नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई R इंटू R, ठीक है, R और R कैंसल, T और T कैंसल, ठीक है ना, तो आपको क्या निकलेगा, ये आपको निकलेगा E एवरेज इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू E नॉट, आपको निकला E एवरेज इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू E नॉट। जब आप पाई का वैल्यू निकालेंगे तो आपका सीधा निकलेगा E एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू E नॉट, E एवरेज निकलेगा आपको 0.637 इंटू E नॉट, ठीक है ना। This is the expression for average value of alternating EMF, or this is the relation between average value of alternating EMF and peak value of alternating EMF. It shows
that average value of alternating EMF is equal to 0.63 times or 2 by pi times the peak value of alternating EMF. देखो ये जो EMF है, ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF है, ये मैंने निकाला फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC. अगर मैं निकालूंगा फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC तो उस वक्त इसका वैल्यू क्या निकलेगा? शाबाश, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC ये निकलेगा 0.6 माइनस टाइम्स 0.637 into E naught. फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ये ऐसे निकलेगा E एवरेज, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस 0.637 into E naught. जरा फुल साइकिल के लिए क्या निकलेगा? फिर फुल साइकिल के लिए क्या निकलेगा? Therefore, for full cycle of AC, for full cycle of AC, that is from 0 to T, जो आपका E एवरेज होगा, E एवरेज जो आपका होगा वो होगा 0. यानी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF for its full cycle is always 0. In the same way as the average value of alternating current is for full cycle. This completes average value of alternating EMF and average value of alternating current.